Good afternoon, Manasvi. How are you? Good afternoon, sir. How are you, beta? I'm good. So, I sent you the homework also, right? You sent me a very that 1 second. So your voice is not clear. Was just about to say you 1 second. Is it clear right now? No. What's the problem with my voice today? One second. Is it clear? Yeah, it's clear now. It's clear, no? I don't know what's wrong with my health there. सर ऐसे वायरल हो गया क्या? I don't know बेटा, डॉक्टर ने पहले वो वायरल बोला, तो आज कल लास्ट हो जाना चाहिए था, बट आज भी आई एम नॉट, क्या मालूम, देखते हैं, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा. Sir, and you really need to rest also for that. कभी-कभी ज़्यादा देर नहीं, I am not taking any lectures now बेटा, I am only taking your lectures today. वो भी wind up करके I'll have a doctor visit at 2:30, 3 o'clock. I'll go there. Yeah. So I won't be taking much lectures also. बेटा फिर लेक्चर भी नहीं लेगा ना, I feel bored at home. क्या करेगा बेटा, क्या करेगा? Yes. क्या करेगा? Yeah. We are very habitual to speak ना, and अगर हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर You got all the answers right for the homework. I think there were 3 sums, right? Yes. First, second, and third. First, second, and third. Yes. And जैसे the way you taught वैसे ही मैंने almost सारे लिखे हैं. Okay, okay, great. So I understood. Beta, whenever you solve the solution now, I'm just, Yeah. it is not required, but what I teach to my students now, please draw diagrams. Draw Okay. diagrams. Why I suggest to draw diagrams? Because when you say x plus 50 is equal to 180, x किधर है, किधर है, plus 50 क्या लिखा आपने, मेरे को तो समझा ही नहीं, डायग्राम नहीं है यहाँ पे तो. Unless and until I have the question paper, unless and until I have the question paper, एक बार मेरे पास question paper रहेगा तो फिर मैं solve कर सकता हूँ. समझा, मतलब देख सकता हूँ. अब एक टीचर अगर तुम्हारा कोई बोर्ड का पेपर चेक कर रहा है, कुछ देख रहा है और उसको डायग्राम नहीं दिखेगा और उसको शायद क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? रॉन्ग है ना? तो मतलब प्योरली डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर, बट अगेन व्हाई टू टेक अ रिस्क, ड्रॉ कर देने का ना. I specifically try that. Okay, sir, I'll draw it and I'll resend you again. No need to resend, but I just wanted to know
How come you got x 180 here? No, wait, let me open the Sir, question. you मेरे को भी only question- told that day. I told, but how did you got? Yes. There should be some kind of reason over here, na? Like interior angle or like alternate interior angle or I something. don't remember Yes. the question exactly right now. Let's see. Acha, I'm opening the PDF. Wait. ये है ना? Storage, storage, storage. Okay. Find x. If y plus y is to z is equal to बेटा ये x तुमको पहले ही कैसे मिल गया? Without solving anything. हाँ? Sir, मतलब I didn't get you. मतलब we Question. considered it as 180, na? How come we considered then x 3 as plus 180? एक minute. The figure of this is second one, बेटा right? अगर आप बोलते थे सर इसको सपोज ये एंगल को मैंने नाम दिया m नहीं है ना किधर m दिया x plus m is 180. How come x alone gives you 180? Are you getting my point? What I am able to convey मतलब you? यहाँ पे y plus x is z is equal to 180. हाँ y plus z क्यों 180 है? Because मैंने तुमको बताया था alternate interior angles. Interior angles. है ना? So हाँ अभी तो x के yes. नहीं बट x और z जो है बेटा they are equal. They are not 180. Why they are equal? Because they are alternate interior angles. Sir, alternate interior angle कैसे हुआ है ये? अगर suppose मैंने इसको और इसको मिटा दिया, किसको? देखिए ये एक लाइन को हटा दिया और ये एक लाइन को हटा दिया, मतलब मेरे पास कितने पैरेलल लाइंस बचे अभी? AB और EF. अभी एक x का alternate interior angle कौन सा है? Z है. तो हमने थियरम में पढ़ा ये ऊपर की alternate interior angles are always equal. Equal. है ना? वो चीज हमने किया ही है ऑलरेडी. तो व्हाई नॉट वी फॉलो द सेम स्टेप्स हियर? कैसे सर? अभी हमको क्या दे दिया है? y is to z is equal to 3 is to 7. हाँ, let the common multiple be x तो है y है, let the common multiple be m नहीं है ना, m ले लेते हैं. तो y का आंसर क्या हो जाएगा? 3m और z का आंसर क्या हो जाएगा? 7m. Yes. ना? So now y 3 plus 7 is equal to 180. 3 plus 7. Yes, one second. One second. हाँ, 7m plus 3m is equal to Is equal to 10m. नहीं, one second. हाँ, नहीं, one second, I'm getting wrong something. Where the hell I'm getting wrong here? Seven plus 2 should be 180. This is exercise 6.2, right? Yes.
ओके 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 Sir, बेटा I did it. हाँ. x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है. Okay. हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू X 180 plus होता y. है. Okay. हाँ, अभी x तो ऑलरेडी मेरे को किसके इक्वल मिला है बेटा? z के इक्वल मिला Z है. के. हमने मालूम है ना x इज इक्वल टू z. हाँ, क्या Yes. लिखा ब्रैकेट में? यहाँ पे हमने लिखा क्यों सर ये इक्वल है? बिकॉज इट इज Alternate हाँ interior. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हाँ, angles. तो ये लिखा. अभी तो ये x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? z लिख दूंगा. z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है ना. तो z तो मेरे पास है, क्या है? 7m है, प्लस 3m इज इक्वल टू 180. 180. तो 10m इज इक्वल टू 180. तो m इज इक्वल Divided. टू 18. तो y का अपने को किसका? z का वैल्यू ढूंढना है ना, नहीं x का वैल्यू ढूंढना है. तो X z का का X वैल्यू का. मिल गया तो x का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो z इज इक्वल टू क्या है? 7m है. m का वैल्यू क्या मिला मेरे को? 18 मिला. तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 दैट 18. इज 126. 126 डिग्री. Since z is equal to x, x is also equal to 126 degree. समझा? Only the one mistake I made was therefore X plus Y is equal to 180. Not one mistake, you did many mistakes better here, because how you concluded this was the question which was asked. Once you are saying ki x is equal to 180 degree, now you are saying that x is equal to 126 degree. Why are you Sir, changing your statements only? मतलब we can consider X as 180 degree to get the final answer. No, why are we considering that? We can consider x as a, b, c. Why are you coming to a figure? When Okay, the you time when mean you come, numerical? the time when you come to a figure, मतलब you are saying that किसका वैल्यू सर यही हो गया. अभी मैं बोलूँ सपोज सर मनस्वी का वेट x है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. अभी मैं बोलूँ सर मनस्वी का वैल्यू वेट 102 है kgs. हाँ सर, ये क्या पागल जैसा बात करो? 102 है क्या मेरा वेट? नहीं ना. It can be anything, but when I give any numerical value ना, that specifies the things कि बाबा ये हो मतलब you गया. have to prove here कि क्या है ये x क्यों का X वैल्यू ऐसा क्या है वो अपने को प्रूफ करना है. मनस्वी का वैल्यू x है, तब तक सर आप बोल रहे थे, तब तक मैं सुन के ले रही थी. बट जब भी आपने मेरा वेट को 102 kgs बोल दिया, तभी मैं क्यों सुन के लूं? क्योंकि मेरा वेट तो उतना है ही नहीं. x का वैल्यू तो प्रेडिक्ट करने के लिए मैं 20 भी प्रेडिक्ट कर सकता है, 50 भी प्रेडिक्ट कर सकता है, 60 भी कर सकता है, 100 भी कर सकते हैं, 102 भी कर सकता है x का वैल्यू प्रेडिक्ट. बट व्हेन आई कम टू सर्टेन काइंड ऑफ assumptions, तो मैं कुछ भी कर सकता. बट ये क्या हो गया बेटा? ये आपने x इज इक्वल टू 180 क्यों एज्यूम किया, जबकि वो 180 है ही नहीं. समझा आपको? समझा. तो इधर फिर we मतलब can write 3 as 3 है. How can you write 3 as 3 है? okay. You can write 3 as 3 into 1. इस a का वैल्यू इज 1 क्या? नहीं. तो how can you write that? So यहाँ पे अगर मैंने 3a if suppose लिखा है, तो फिर यहाँ पे x is equal to a लिखना चाहिए था. नहीं, यहाँ पे क्या करना बेटा, कैसा होता है मालूम है? अभी सपोज x upon y is equal to 1 upon 3. मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? x is to y is equal to 1 is to 3. Yes, ratio. अभी ये जो 1 is to 3 आया है बेटा, ये कुछ तो कट के आया है ना. Yes. है ना. सपोज form यहाँ में. पे है ना लोअर फॉर्म हो क्या आया है आपको, और इसका भी लोअर फॉर्म नहीं हो रहा है. मतलब इसका कुछ तो मल्टीपल था जो हो क्या आया है यहाँ पे आपको. तो मतलब सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3/9.
सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया 3/8, इधर क्या 3 1 जा 3 3 जा 1/3। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या था बेटा आपका, यहाँ पे था 3 और यहाँ पे था भी, यहाँ पे भी था 3, समझा, यहाँ पे भी था 3, यहाँ पे भी था 3, तभी जाके तुमको 9 आया। तो कॉमन मल्टीपल अभी मेरे को यहाँ पे मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया सर, लेट द कॉमन मल्टीपल बी, लेट दी, हाँ x तो है इधर, तो a ले लेते हैं a, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1a और y का वैल्यू हो जाएगा 3a। जब a का वैल्यू मुझे मिलेगा तभी मैं इनके साथ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1a का मतलब a का वैल्यू 3 मिला तो मैं 3 डाल दूंगा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 3/9 आता है रेशो। तो ये जो चीज दिया है तुमको कुछ चीजों के लिए दिया है ना, तो x/y/z=3:7, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी a, therefore y is equal to 3a, therefore z is equal to 7a। समझा? समझा। डायरेक्टली मतलब आई रोट की 180 है तो हाँ, but how come you got that 180? How come you got them? My main question is how come you're coming to a conclusion without you're unaware about the answer? ये तो मैंने तुमको सिखाया था करके तुमने ऐसा ऐसा कर दिया। You don't do that. I need this sum again, हाँ बेटा, question number 2. Okay. Take the help of your digest or anything, understand and do. So यहाँ पे x plus y is equal to 180 होना चाहिए and को इंटीरियर 3a एंगल्स क्या and था, x, हाँ x plus y is equal to 180 है, क्यों सर, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट नहीं है इन लोग, ऑल्टरनेट एक छोड़ने के बाद होता है। x plus ये ओके ओके गॉट x plus z वो नहीं x is x and z were alternate all, हाँ x is equal to z क्यों है सर, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो ये पहले लिखना है हमें, फिर उसके बाद बताना है x प्लस है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। हाँ, फिर उसके बाद बताना है कि x इज इक्वल टू z है ना, फ्रॉम 1 से मैं ये इसके जगह पे z लिख देता, तो z प्लस y इज इक्वल टू 180, बट z का वैल्यू तो मेरे को मिला है, क्या मिला है सर, z का वैल्यू 7a मिला है और y का वैल्यू सर क्या मिला है, 3a मिला है मेरे को, इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 18। ये समझा? yes नाउ नेक्स्ट। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है इसमें। and ठीक है, then later on I understood. I'll solve the entire question for you again. Okay, wait, let me open my whiteboard.
Sir, and one thing I also हाँ noticed about this is कि ये whatever like we are doing this interior and alternate वगैरह ये next chapter में भी आएंगे. हाँ I आएंगे, think lesson 8 में. ऑलमोस्ट चैप्टर्स में आएंगे बेटा, ये आपका ज्योमेट्री का बेसिक्स है. सेकंड बेटा. सर यहाँ पे जैसे इस फॉर्मेट में दिया है ना कि AGE, तो आई गेस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि लाइक उस फॉर्मेट से नहीं गया है. लाइक फर्स्ट AGE है तो मैंने वो लिखा है, बट सेकंड मैंने डायरेक्टली नहीं नहीं बराबर लिखा, बराबर. आई थॉट कि वो कट किया था तो फिर ओके पेस्ट हो जाए भाई कुछ. ओके यहाँ पे क्या दिया, पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. In this figure, AB is parallel to CD. Okay, AB ये जो है उसको parallel बता दिया CD के साथ. Okay, and EF is perpendicular to CD. Perpendicular मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है. समझा? क्योंकि 90 + 90 तो पूरा हो गया, फिर 180 हो जाएगा, है ना. ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. ओके, तो अभी इन्होंने बोला है GED 126 दे दिया है. GED मतलब कौन सा एंगल इन्होंने 126 दिया है? GED. दिस एंगल 126 दे दिया है ना, है ना. तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको है ना एक अच्छा ये बना के बताता हूँ, ड्राइंग बना के बताता हूँ, अपन उस हिसाब से करेंगे. और उतना ही इमेजिन करो. अभी सपोज मैंने ED यहाँ से बनाया, 90 डिग्री का एक लाइन बना देता हूँ. और ये बना. अभी मैं तुमको क्या अब बोल रहा हूँ, खाली इतना कंसीडर करो बेटा. सपोज दिस पॉइंट इज G, दिस इज F, दिस इज E, दिस इज D. समझा तुमको मैंने क्या किया बेटा? मैंने ऊपर वाले डायग्राम से खाली इतना सा पोर्शन निकाला है. ओके,
खाली मैंने इतना सा पोर्शन निकाला जाके वो अपने को एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाए। अभी जिसमें से मेरे को दे दिया है कि EF इज परपेंडिकुलर, बेटा EF इज परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हो गया फाइनल। यस हाँ, GED 126 दे दिया, GED 126 दे दिया है। फाइंड AGE, सॉरी GEF बोला, हाँ चलो GEF बोला है। फाइंड GEF, अभी ये एंगल पता लगाने को बोला है तो तुम कैसे लगाए? GEF G sir I didn't try. Sir, I think 126 minus 90. How come you are getting that? AGE, right? No, sorry, GEF. GEF. Sorry, 180 minus 126. How come 180? Sir, ये दोनों एंगल as you said कि 90 हुए तो मैंने कभी बोला ये 180, एंगल 90 डिग्री है? मैंने तो कभी भी नहीं बोला, मैंने तो ये एंगल तुमको ढूंढने को बोला है। मैं क्या बोला? Sir, अगर नहीं, in इधर the एक blue और लाइन, figure. हाँ अगर ऐसा होता तो ये 90 होता ना बेटा, बट ये तो ऐसा है ही नहीं। You forgot this figure. You say me कि ये पूरा G अभी पूरा एक एंगल है। अच्छा मेरे को बताओ, ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एंगल GED is equal to एंगल GF प्लस एंगल FED, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। GED is equal to GEF FGE and plus AGE also, right? अरे मैम ये फिगर में देखो, आप ऊपर का फिगर में जा क्यों रहे हो? अच्छा, okay, sorry. You just Yes. concentrate on the figure which I have drawn. Is this okay? हाँ, any doubts in this? Can I No. write this as मतलब ऐसा लिख सकते हो GED is equal to GEF plus In the given F. figure, we can write this. हाँ तो Right. अपन एक्चुअल में इधर भी ऐसा लिख सकते हैं अपन। मैंने खाली But इसमें से AGE के साथ नहीं, क्यों AGE तो बाहर का एंगल हो गया ना। GEF मैं खाली कितना एंगल का बात कर रहा हूँ बेटा, मैं खाली इतना एंगल का बात कर रहा हूँ। ये एंगल के अंदर कितना एंगल है सर? ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इन दोनों को प्लस किया तो ये बड़ा एंगल बन जाता है ना। तो GED तो मुझे 126 दे दिया, 126। GEF तो मुझे ढूंढना है, तो GEF को मैंने ऐसे ही रख दिया। FED, अरे ये तो बोल रहा परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अभी 126 पे क्या हुआ अभी वैसा? So it would be like 126 minus perpendicular 90. Yes. So we get 36. हाँ,
तो वही तो हम पूछ रहे थे, तो तभी तुमने फर्स्ट टाइम जब ये बोला, आई जस्ट आस्क यू द रीजन व्हाई आर यू सेइंग दैट, दैट्स इट। सर आई गॉट कंफ्यूज्ड कि वो दोनों 90 डिग्री थे तो उन दोनों को मिला के 180 ही होगा। देन अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने तो वैसे ही किया था, दोनों को मिला के 180। कैसे बेटा, आपको 180 कभी होता है, आपको उतना मालूम है क्या? ये When- स्ट्रेट लाइन लाइक हाँ तो CED यहाँ पे इज एक इक्वल टू स्ट्रेट 180। लाइन, हाँ तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है क्या ये एंगल में, तो 180 कैसे होगा वो? अभी सीईडी इज 180, जबकि जब भी मैं लिखूं GEC प्लस EF, सॉरी GEF प्लस FED, ये तीनों को मिला दिया ना, तो देन इट इज 180। ओके, समझा? सारे हम्म, एंगल्स को, राइट? हाँ क्लियर है अभी? यस। So 126 minus 90 will get 36 degree, हाँ which हाँ। is GEF. हम्म, 1 second, I am restarting this entire thing because यहाँ पे भी FGE भी मैंने वैसे ही किया है, 180 minus 126. second now, why can't I write? Okay. So अभी यहाँ पे what I got, angle GEF, GEF नहीं GED is equal to angle GEF plus angle FED। ओके, तो ये तो 126 दे दिया, मेरे को GEF ढूंढना है मुझे, ठीक है चलो GEF ढूंढता हूँ, ये Plus 90. परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, ये हो गया 126 माइनस 90 इज इक्वल टू GEF। ये हो गया एंगल GEF इज इक्वल टू 12 में से 9 गया, 36 बचा, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। हाँ समझा? नेक्स्ट अभी अपने को ढूंढना है AGE। FGE. ठीक है चलो FGE ढूंढ लेते हैं, FGE किधर है? ओके, FGE मतलब हमें ये एंगल ढूंढना है, ये एंगल, फाइंड FGE। अभी मेरे को क्या क्या मिल गया, ये 90 है और ये 36 है मिल गया, ये 90 है और ये 36 है मिल गया। अभी ये एंगल पूरा और ये एंगल कितना होगा बेटा?
अभी लीव दिस परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को भूल जाओ। मतलब 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री को भूल जाओ। ये पूरा हमें दिया हुआ है, पूरा कितना है, पूरा 126 ऑलरेडी जीईडी दिया हुआ है ना 126। जीईडी है 126 एंड एफजीई ढूंढना है। हाँ जीईडी हमें दिया हुआ है 126। हाँ अभी मेरे को बताओ ये 126 है तो ये कितना है? सर वो भी 126 ही होगा ना। ना ना ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सीईजी कितना है। जीईडी नहीं, क्या क्या? एंगल सीईजी कितना है? सीईजी सीईजी 126 माइनस 36। 36 किधर से आ गया अभी बीच में? 36 तो इतना सही एंगल है ना। जी 36 तो, और अभी देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सीईजी प्लस जीईडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जीईडी जीईडी कैसे सर? जीईडी का ऑलरेडी वैल्यू तो गिवन है 126। हाँ वेरी गुड। सीईजी ये ऐसा लिख सकता हो क्या, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री? CEG is equal to 180 degree. CEG plus GED is equal to 180 degree, which is Sir, CED, my linear point pair. is GED का already value तो given है तो। हाँ ना बेटा, तो हमें क्या करना है, उसका वैल्यू गिवन है तो अभी मेरे को बताओ, कैन आई राइट इन दिस मैनर क्या? एंगल CEG plus angle GED is equal to 180 degree और angle CED। yes yes। समझा मैं 180 क्यों लिख रहा हूँ अभी? हाँ तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? लीनियर एंगल, क्योंकि लीनियर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है। तो सीईजी तो मुझे मालूम नहीं, तो एंगल सीईजी प्लस एंगल जीईडी मालूम है 126 इज इक्वल टू 180। तो एंगल सीईजी इज इक्वल टू 180 माइनस 126। तो एंगल सीईजी is equal to 64 degree। 64। ओके 7 में से 2 गया, 54 आना चाहिए। आई एम सो सॉरी बेटा। 8 में से 2 निकाला, 54 डिग्री। हेलो, अच्छा अंकल मेरे को उसका फोन आया था, क्या नाम है अपना, पीछे वाले का। हाँ स्टूडेंट था, तो वो बोला सर एग्रीमेंट वगैरह का क्या करने का है, कैसे करेंगे, क्योंकि परसों से अगर मैं ले रहा हूँ तो मैंने क्या बोला, बेटा पहले तो टोकन दे के फाइनल तो कर, फिर तू ले बैठ जा उधर जाके, एग्रीमेंट अपन करते 1-2 दिन में। हाँ तो बोला ठीक है सर, पापा से बात करके। मैंने बोला एग्रीमेंट का, हाँ हाँ तो इसके लिए आज, हाँ इसके लिए आज शायद मेरे को फोन किया था उसने। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो अभी पहले उसको बोला पहले टोकन दे के बुक कर जगह बेटा, क्योंकि बहुत जन आ रहे देखने को। मैंने पहले उसको वही बोला कि पहले टोकन दे के भाई फाइनल कर, क्या है क्या नहीं है, बाद में तुम लोग करते बैठो एग्रीमेंट का। हाँ भरोसा तो रहेगा, वो ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट मैंने ऐसा बोला बेटा कुछ तो दे, तुम लोग खाली मुंह बोली बोल के गया, अच्छा नहीं लगता ना वैसा। हाँ कुछ तो दे देना चाहिए, 500, 1000, 2000, 5000 ऐसा कुछ टोकन दे के। हम्म हम्म हम्म
हाँ हाँ, कल से नवरात्रि चलेगा बराबर। नहीं मतलब वही मैं बोला 5,000 6,000 10,000 कुछ तो टोकन दे देते। हम्म 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 हम्म। नहीं बराबर है, नहीं नहीं नहीं, 1 महीना गायब देगा वो। ठीक है चलो मैं बात, नहीं नहीं समझा समझा। हम्म, समझा समझा समझा। हम्म हम्म, हम्म, चलेगा। हम्म, इमीडिएटली कर देगा वो। हम्म, हम्म, हाँ मैं बोल, वो तो मुझे पता है, उसको पता रहना चाहिए बराबर। क्या? हाँ भाई, ठीक है चलो मैं देखता हूँ। चलेगा, मैं बोल देता हूँ ऐसे, मैं आप ही का नंबर वहां पे भेज देता हूँ, बोलता हूँ बात कर ले। हाँ 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 हाँ। समझा समझा समझा। कल तो कर सकते बराबर। चलेगा। नहीं उसका सामने से ही फोन आया मतलब उसका डन ही रहेगा, फिर मैंने तो कॉल किया नहीं था। हाँ चलेगा। हम्म 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 चलेगा कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। थैंक यू। बेटा कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. Alternate interior angle CEG is equal to FGE, FGE. है ना? Yes. ऑल्टरनेट इंटीरियर हाँ. एंगल, तो हमें FGE तो Angles. ढूंढना है। FGE भी मिल गया, ये भी मिल गया, और एक एंगल कोई ढूंढना है अपने को। AGE. AGE, चलो AGE भी ढूंढते हैं। यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, तो एक काम करता हूँ। हाँ AGE and angle GED is 126. GED. AG. Sir, हाँ AGE हाँ। and sorry, AGE and GED. बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। Sir, I think they are also equal only. हाउ कम? AGE. टेल मी द रीजन। AG. Yeah, that's what AGE. यू आर सेइंग कि एंगल AGE is equal to which angle? GED. एंगल GED, हाँ। Why? क्या रीजन लिखूं यहाँ पे? Sir, AGE, GED. Opposite angles? काय का ऑपोजिट No, एंगल? sorry. Uh, I think interior angles. Alternate interior Alternate angle. interior angles. Alternate interior angles Interior are angles. always equal. Therefore, AGE is AG is equal also to 126. 126 degree. ये समझा? This I पक्का? understood and this also, yes. हाँ तीनों चीजें समझा आपको? Yes. हाँ श्योर। चलो ऐसी का ऐसी कॉपी करो भी ये। अभी बेटा इसको है ना AGE फाइंड करने को ना, यू कैन हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, लाइक क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है हमको AGE फाइंड करने के लिए? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? Mm-hmm. तो AGE तो हमें मालूम नहीं, तो एंगल AGE
हाँ FGE मालूम पड़ा, दैट इज 54 is 54. equal to 180 degree. The angle AGE is equal to 180 minus 54. The angle AGE is equal to 6 to 126. ऐसा भी फाइंड करना था, ऐसा भी फाइंड कर सकते हो तुम, इट्स कंप्लीट योर कॉल. Okay. समझा? मतलब दिस इज वेरी इजी. मैं तो तुमको ऐसे ही सिखाने वाला था, बट आई एम प्राउड दैट यू क्लिक लाइक दिस, तो मैंने ऐसा लिख दिया. इट्स कंप्लीटली योर पेपर, योर पेन, हाउ यू वांट टू राइट, बट अ प्रॉपर रीजन. हाँ बेटा, मतलब एक एक रीजन होना ही चाहिए फिर रीजन प्रूविंग. होना ही चाहिए विद अ प्रॉपर रीजन. रीजन नहीं है तो मतलब नहीं बेटा. एक्चुअली कैसा है मालूम है बेटा, ये चीज आपको हमको पहले ही फाइंड कर देना चाहिए था. AG क्योंकि 126 GED दे दिया था. GED तो पहले ही दे दिया ना 126. GE हमको पहले ही फाइंड करके रखना चाहिए था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बट मेरा ध्यान थोड़ा वैसा था कि अगर वो एंगल का अगर मेजरमेंट मिल गया तो 180 से हम माइनस करके अपन कर सकते हैं. एज यू विश, आपको जैसा ठीक लगे वैसा. डन सर. Okay. Now, understand this figure very clearly, huh, beta? And this, if you understand this figure, now, beta, the sums become very easy to solve. Okay. In this figure 6.31, line PQ is parallel to ST. अरे बाप रे, PQ इतना छोटा, ST ऐसा सोचा. कोई टेंशन नहीं सर, हम लोग PQ को बड़ा कर देते हैं. लाइन PQ को हम बड़ा कर देते हैं कुछ ऐसे. PQ is parallel to ST है ना, ST को भी बड़ा. अब समझा तुमको कैसे पैरेलल है ये दोनों? Yes. पक्का? पहले वो डायग्राम देख के थोड़ा अजीब लग रहा था अपने को, बट अभी अपने को ठीक लग रहा है.
PQR is 110 डिग्री, PQR 110 दिया हुआ है हमें, एंड RST 130 दिया हुआ है हमें। RST और PQR 130 दे दिया है, हमें क्या फाइंड करना है? QRS। अच्छा, हमें ये डिग्री फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। और क्या बोला गया है हमें? ड्रॉ पैरेलल लाइन, हिंट दिया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। ST को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो थ्रू पॉइंट R। ठीक है, चलो Point R. पॉइंट R से हम लोग एक लाइन पैरेलल ST के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है। ओके, अभी हमें ढूंढना है ये एंगल ढूंढना है। तो अभी ये एंगल कैसे ढूंढेंगे, सोचो। अच्छा मेरे को बताओ, इसको हम सपोज, RST हाँ, इसको हम नाम दे देते ना, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम नाम दे देते। क्या देते? एक तो x और दूसरा चलो y दे देते। ओके, अभी बताओ। अच्छा मेरे को बताओ, Sir, we can QRY कितना डिग्री रहेगा? QRY. Sir, degree मतलब QRY. Sir, we can write it as angle RST plus angle PQR is equal to QRS. एंगल RST ST plus angle QR, okay, PQR is equal How? to how come they are both different transversal ना बेटा, ये दोनों अलग अलग ट्रांसवर्सल है। ये एक ट्रांसवर्सल है जो कुछ ऐसा जा रहा है, और ये दूसरा ट्रांसवर्सल है। जो कुछ ऐसा जा रहा है, दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है ना बेटा, समझा अभी तुमको ये डायग्राम? अभी मैं तुमको पूछ रहा हूँ QRY कितना रहेगा? 110 plus 130. QRY तुमको समझा मैं कौन सा एंगल का बात कर रहा हूँ बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल QRY कितना रहेगा। अच्छा, कैन आई राइट QRY is equal to angle PQR? Yes, 110. How come? Opposite नहीं QR How come? QR QR so vertically opposite, alternate interior angles QR QRY. So alternate interior angles कैसे? Forget about this transversal, पिंक वाला लाइन को छोड़ दो, भूल जाओ। अभी PQ और XY को ही देखो, अगर ये 110 है तो QRY भी 110 रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट मतलब इसको छोड़ दिया और इसको पकड़ा मैं, ये पूरा एंगल को पकड़ा मैं, तो ये 110 है तो ये भी 110 ही रहेगा ना। समझा? Alternate interior angles QRY है ना? okay PQR by RQ. Okay. अभी मेरे को इसका एंगल का मेजरमेंट बताओ। अरे यार ये वापस से SRX. And sir, SRX is equal to RST 130 degree. XRX, अरे यार ये क्यों वापस से एक्टिव हो रहा है यार? 1 सेकंड।
एस आर एक्स is equal to which angle? एक मिनट, एस आर एक्स इज इक्वल टू आर एस टी. RST. Why? एक्स आर एस Why? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, नहीं नहीं. अभी तुम बीच का लाइन भूल जाओ, बोल सोचो बीच में कोई लाइन ही है ही नहीं. एक्स नहीं, एस आर एक्स आर एस टी. ये क्यों भी तुमने ऑपोजिट हुए ना, वर्टिकली ऑपोजिट में भी. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब मालूम है बेटा, जो दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं और वो दोनों के आमने, इधर बेटा 3 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बनेगा? दोनों भी ऑपोजिट साइड्स में है ना. बेटा दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना. समझा? सर ये वाला नहीं समझा. आर एक्स नहीं, एस आर एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे Now ऑल्टरनेट don't इंटीरियर एंगल्स. consider this angle, this line, leave this line and leave this green line. ये दोनों लाइन को भूल जाओ. अभी this angle is equal to this angle, alternate interior angle. अगर बीच का ये लाइन नहीं होता तो this is equal to this ना एक्चुअल में. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऐसे थ्योरम ही बोलते हैं. समझा? तो therefore angle QRY is equal to 110 degree and angle क्यू SRX is equal to 130 degree. समझा? नाउ फाइंड क्यू आर एस. अभी हमें QRS निकालना है. ओके, अभी हमें ये पूरा मिल चुका है और ये पूरा मिल चुका है ना. हमें खाली बीच का पार्ट निकालना है. कैसे निकालेंगे? uh, 130 plus 110 and minus 130 plus 110 कैसे होगा बेटा? minus 180. ना, अभी देखो मेरे को ये चीज को समझो. यहाँ सपोज यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना. सर एक मिनट, हाँ, or maybe like 130 minus 110, so middle angle is of 20 degrees. कैसे? QRY minus नहीं, SRX minus QRY is equal to QRS. अच्छा ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो. आप यहाँ पे मेरे को ध्यान दो. अभी मेरे को बताओ अरे यार फिर से यार. चलो एकदम ध्यान से बताओ बेटा. अभी एंगल, अरे यार एंगल PQR plus angle QRX is how much? PQR QRS. QR. PQR is 110 and PQR नहीं, दोनों का इक्वल कितना होगा बेटा? PQR, okay.
180 होगा ना बेटा? सर नहीं, मतलब पी क्यू आर दो तो पैरेलल 100 लाइन एंड है, मैंने तुमको बताया था। अरे यार, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, और अगर सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का एडिशन इज ऑलवेज 180 डिग्री। याद करो हमारा थियरम। दोनों आई का थिंक इंटीरियर, पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन डिस्टेंस एंड दे आर इक्वली डिस्टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल्स बेटा। अगर दो पैरेलल लाइंस है, हाँ, और एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, तो जो उनका सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स है ना, उन दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री रहता है। of समझा? the transversal that is passing between हाँ, two angles. तुमको इंटीरियर एंगल्स मालूम है अभी क्या हो गया? तो इंटीरियर एंगल्स Yes. जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स रहते हैं ना, हाँ, ऑल्टरनेट नहीं, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं, और सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल रहते हैं ना, उनका एडिशन इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब अगर 110 के नीचे एक alternate interior angle होता तो that would have been 180. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल बेटा, जो हमने ऑलरेडी लिखा है ना यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो ना, पी नहीं क्यू आर नहीं, का सॉरी सॉरी, on the same side, on the same side. सेम साइड का मैं बात कर रहा हूँ। तो तो पी क्यू वही आर one, प्लस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर 180 डिग्री? बिकॉज इट इज को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट नहीं है, साथ में करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू आर तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 110 प्लस क्यू आर yes, एक्स इज वही इक्वल टू तो 180 डिग्री। तो अभी 110 को वहां पे भेज दे, तो क्यू आर एक्स is equal to 180 minus 110, that is angle 170. QRX is equal to 70. 70. 180 में से 110 गया बेटा, कितना बचा? Oh, sorry, 70. Yes, yes, yes. QRX is equal to 70. But sir, why did we consider ये QRX हमने क्यों पकड़ा? Like किस हिसाब से? बेटा ये देखो, किस कौन Because सा they are क्यों? co-interior बिकॉज angles. आई वॉज गेटिंग दिस एंटायर एंगल, मेरे को खाली इतना सा एंगल चाहिए था, मिडल जो बीच में है वो. बीच का नहीं, साइड का। अगर ये साइड का मिल गया मेरे को, अरे PRX is sorry, PQR देखो is बेटा, 100. ये एंगल मिल गया मेरे को, ये एंगल मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सर कैसे? बिकॉज ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज 180 डिग्री, लीनियर एंगल है ना। अगर मेरे को ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया, तो मेरे को ऑटोमेटिकली ये एंगल मिल जाएगा। Yes. मैं अभी वही किया ना, अभी मैंने ये एंगल ढूंढा, ये एंगल मेरे को कितना मिला सर? 70 डिग्री मिल गया मेरे को ये एंगल। अब मैं चल रहा हूँ दूसरा एंगल। अभी मेरे को बताओ, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस टी वाई, एस आर वाई, चलो आर वाई कितना होगा? S क्या? RST is 130 and ये क्या है? एस आर SRT. वाई, वाई वाई, SRY. हाँ। So here also you would consider it as 180 only. क्यों 180 कंसिडर करूंगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो Because co-interior को angle. इंटीरियर एंगल्स। Angles. So हाँ, तो 180 आर minus एस टी तो 130. हमको 130 है, एस आर वाई नहीं मालूम है मुझे कितना है, 180। तो एस आर वाई 50. is equal to, very good, 180 minus 130, therefore SRY Okay, so sir, ये जो एंगल is है equal to 50. हाँ, QRY plus ये अपना SRY which is 50,
तो इन दोनों को माइनस करके वी वुड गेट दी सम मैं बता रहा हूँ, अभी हमें ढूंढना क्या है बेटा? QRS। QRX ढूंढना है ना। अभी देखो, एंगल QRX प्लस एंगल, और कौन सा? QRS ना, QRS प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? QR सिर्फ QRX है राइट? हाँ, QRX प्लस QRS प्लस QSRY। मामा लेक्चर में हूँ, आधा पौना घंटा। प्लस SRY। हाँ 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 हाँ। Sir, it would be 70 plus angle QRS plus 50. 70 QRS का प्लस, वैल्यू नहीं है कुछ अब तक। मेरे को पता है, ये तीनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? XRY देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, तो XRY क्या है बेटा? 180 है ना, स्ट्रेट लाइन है यस। है ना? हाँ, बट यहाँ पे तो दे आर आस्किंग कि रुको, टोटल कितना है, हाँ तो तो टोटल ही मैंने QRS का बताया ना। वैल्यू ही नहीं दिया है कुछ। हाँ, तो QRX का मिला हमें 70 डिग्री। हाँ, क्यू 70 क्यू प्लस ये वैसे QRS का को वैसा ऐसे ही प्लस रखो। 50। हाँ, प्लस 50 हम्म इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 180। Therefore, QRS is equal to 180 minus 120. Therefore, angle QRS is equal to 60 degree. सर, एक डाउट है जो मुझे अब तक बोलो समझ नहीं आ रहा है, इट इज कि 180 आया कहाँ से, मतलब बेटा, ये XRY is a straight line ना। हाँ अगर ये बराबर, बट यहाँ पे तो तीनों को मैं मिला दूं तो मेरे को हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये QR वगैरह तो QRX QR सिंबल। X प्लस QRS प्लस SRY, तो तीनों को अगर मिला दो तो इट इज 180 डिग्री ना। ओ यस यस यस, है ना? यू मीन समझा? 130 प्लस। लीनियर एंगल्स। तुमको समझा कि ये क्वेश्चन? सर थोड़ा नहीं वे बाकी क्या का नहीं सब समझा समझा? 180 वगैरह, बट ये जो है ना, मतलब इधर तक ये जो नीचे का वो लिखा है ना 70 प्लस, वो पूरा मैंने बराबर मुझे समझ आया, बट ये फर्स्ट इसमें इज इक्वल टू 180, ये समझ नहीं आ रहा मुझे किस किस तरह, लाइक XRY ये तो दिया ही नहीं है, मतलब किधर टोटल में कि वी हैव टू राइट इट एज XRY या समवेयर, हमने तो यही लिखा QRX प्लस ठीक है, SRY चलो जो उधर प्लस। दिया है हम वही सोचते हैं बेटा। हम्म। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है हम वो देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है एक आर्क को लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को बोले, तो ठीक है, जो पैरेलल रहेगा एस टी को पैरेलल है ये। ओके, पैरेलल है, हटा देता हूँ। अभी मेरे को बताओ, इसका नाम मैंने दिया x, इसका नाम मैंने दिया y। ओके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? QRS का तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, सो इट वुड बी 110 प्लस 130, तो वी नहीं, गेट। इज दिस 110? ये एंगल अभी हमने QRX को ढूंढना ना, हमने अभी नहीं 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 नहीं, सॉरी, नॉट 70। 110, 70 प्लस 50। नहीं नहीं, तुम लॉजिकल बात करो बेटा, मेरे को खाली इतना बताओ कि अगर मेरे पास ये 70 का डेटा नहीं होता तो अगर ये तीनों को अगर मैं ऐड करता तो ये क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना।
हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। सपोज इधर एक एंगल बनाया, हम बोलते ओके थे, ओके, यस यस, बराबर, हम आर बोलते इज द थे वर्टेक्स दिस एंड एंगल एक्स प्लस आर दिस वाई। एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ऐसे ही बोलते थे ना। बट यहाँ पे इन्होंने यस। एक और एंगल दे दिया, तो फर्क क्या पड़ रहा है अपने को? बात तो एक ही है ना। तो तीनों एंगल को अगर मैं मिला दूं तो भी 180 डिग्री आएगा मेरे लिए। बेटा 2 + 3 भी 5 होता है, और 2 + 2 + 1 भी 5 होता है। यस। या तो 2 + 1 + 1 + 1 भी 5 होता है, या तो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 टाइम्स 1 भी 5 होता है। तो ये कितना भी आए, ये तो 180 ही रहेगा ना, मेरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया इसके लिए। समझा? यस, पक्का? इसीलिए वी टुक आर एक्स वाई के ऊपर पूरा एंगल मेक हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी टुक इट एज 180। करेक्ट। ओके। एंड अगर डेटा वैसे भी नहीं होता 70 + 50, तो एंगल तो वैसे भी आर एक्स के ऊपर ही बन रहा है, तो इट इज लाइक हाँ, क्या वी फर्क पड़ रहा कंसिडर इट है? एज, हाँ, 180। हमने ये अब क्यों समझा। ढूंढा, ये क्यों ढूंढा, क्योंकि मेरे को इसका अगर वैल्यू मिल गया, फिर इसका वैल्यू मिल गया, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मेरे को। ओके। चलो ये भी क्वेश्चन ठीक। कॉपी कर लो। सर ये वाला थोड़ा ट्रिकी था। तो ट्रिकी नहीं था। एंड बेटा ये वाला पोर्शन मत कॉपी करना, चलेगा, ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए लिखा था। कॉपी दिस पोर्शन। सर ऑन दी लेफ्ट जो नहीं, और ये जो ब्लैक में लिखा है वो ही कॉपी नहीं करना नहीं, है। ये तीनों चीज कॉपी करना है बेटा, ओके ओके, ठीक है। रेड, पिंक एंड ब्लैक। सर एक क्वेश्चन, मतलब इन दिस चैप्टर ओनली, लाइक 9th के क्लास में, लाइक एज फार एज आई ऑब्जर्व, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि हाफ का पूरा प्रूव करो, एंड ये तो व्हाई इज इट लाइक दैट, लाइक नहीं क्वेश्चन में पूरा नहीं नहीं मैं, देते वो। तो फिर तुमको अगर क्वेश्चन में आंसर दे दिया तो तुम्हारा काम क्या बचा? यस, बट सर लॉजिक है ना। मतलब एक दो तो ठीक है, ये वाला जो था ना, मतलब कुछ नहीं 110 का जो बेटा, अंदर नीचे बन रहा आपको था। एकदम इजी है। देखो बेटा, इतना ध्यान दे दो, कुछ भी डेटा जो क्वेश्चन में दिया है टाइम पास के लिए नहीं दिया है। नहीं दिया है, वी नीड यस। टू यूटिलाइज दैट डेटा। अभी पीक्यू और 110 दिया, मतलब पीक्यू से मेरे को क्या क्या मिलेगा वो सोचना चालू करो। इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, इसका कोई इंटीरियर एंगल कितना मिल सकता है। मतलब अभी मैंने भी ये क्वेश्चन देखा नहीं, मैंने पहले कैसे सॉल्व किया, मैं सोचा पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाल देता हूँ, फिर ठीक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आंसर आ ही नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, कोई इंटीरियर एंगल निकाला। फिर मेरे को समझा कि मैंने अगर इसको और इसको, ये दोनों पार्ट को अगर मिल गया मेरे को आंसर, तो मेरा ये पोर्शन तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन मतलब तीनों एंगल को ऐड किया तो मेरे को 180 मिल जाएगा। तो ये सोल्यूशन पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको आंसर्स आ जाएगा। ठीक है।
हो गया कॉपी है? नहीं, थोड़ा बाकी है। हाँ तो एक और लास्ट सम करते हैं आज के लिए। सर पिक्चर ले लूं इसकी हाँ चलेगा, डायरेक्टली ले लिख लो, कोई इशू है। एक मिनट। यस सर, ले लिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आई थिंक आप ही मेरे को इसका आंसर बता दोगे, इतना इजी है। फिंगर्स क्रॉस्ड। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। ट्राई ना बेटा यार, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। सर बिकॉज जो करेक्ट भी आता है ना तो भी मेरा मतलब कॉन्फिडेंस ये हो जाता है हाँ कि तुम क्या रॉन्ग भी एग्जाम है। थोड़ी ना दे रहा है बेटा, रॉन्ग होगा तो क्या होगा, कौन सा मैं उधर आके तुमको थप्पड़ खींचूंगा। सर अभी वो तो नहीं है, बट डर लगता है कि ये भी अब क्या हो सारे जाएगा? सम्स नहीं की मेरे तरह को रॉन्ग बताओ, ही जाएगा। गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलती करने के लिए तो हमें इधर बैठा हो, तुम गलती करो मैं करेक्ट करो। चलो ठीक है, पढ़ो ये लाइन, कोई क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दे दो मेरे को। If AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degrees and angle PRD is equal to 127 degree. Find X and Y. पहले एक्स ढूंढो, मजा आ जाएगा, एक्स एकदम फटाक से तुमको मालूम पड़ जाएगा आंसर क्या है। X AB is parallel to CD, APQ 50 degree. अच्छा, ओके ओके, समझ गया। क्या? अ, एक मिनट। So angle APQ and angle PRD, which is 50 degrees and 127 degrees. तो इन इस to find x हम लोगों को इन दोनों को माइनस करना होगा मे बी। इन दोनों को बेटा, 127 ए माइनस पी क्यू और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है वो बताओ पहले मेरे को। APQ, APQ is exterior angle रिलेशन and क्या है ए पी क्यू में और पी क्यू आर में? AP लीव लाइन पी आर को भूल जाओ, वो सोचो मत पी आर है, ओके ओके, एग्जिस्ट हाँ करता हाँ है हाँ, अपने लिए। APQ you said QPR right कि क्या? हाँ, QPR APQ। सर ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर कैसे बेटा, अंदर है ना बेटा ये। APQ तो बाहर का एंगल है। नहीं नहीं किधर है नहीं ए नहीं, पी क्यू? नहीं। यहाँ एपीक्यू पे 50 के साइड का। हाँ तो वो अंदर का एंगल है बाहर का एंगल है। अंदर अंदर का। तो इन दोनों के यस, बीच में रिलेशन क्या है, एपीक्यू और पीक्यू आर के बीच में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुम्हारा इक्वल हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ तो एपीक्यू का हमें वैल्यू दिया है 50 डिग्री, पीक्यू आर है। हाँ साक्षी बोलो। हाँ आ रहा हूँ थोड़ा लेक्चर में। हाँ हाँ हाँ, आधा पौना घंटा। ये समझा? हाँ हाँ, एंड वैसे तो y भी देखने जाए तो फिर इट वुड बी 127। नो, वाई कैसे निकालेंगे? अच्छा मेरे को बताओ, देखो वाई निकालने का बहुत सारा वैरायटी है यहाँ बेटा। हाँ मेथड 1 में लिखता हूँ वाई निकालने के लिए। मेथड
1. Okay. Hmm. We know that PRD is equal to APR. Why beta? Alternate Very interior good. angles. Alternate interior angle. Okay. PRD हमें कितना दिया है? 127 डिग्री. 127. APR को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल APQ प्लस एंगल QPR. हाँ, तो 127 इज इक्वल टू APQ मेरे को कितना 50 प्लस ये Y, ये इधर गया 127 माइनस 137. 50 इज इक्वल टू Y. 7 में से 0 गया, 7 बचा, 12 में से 5 गया, 7, 77. Y इज इक्वल टू 77. ये समझा मैंने कैसे ढूंढा बेटा? समझा. हाँ, ये तो हो गया मेथड Yes. 1. मेथड 2 क्या बोलता है? मैं एक और मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. मेथड 2. ओके, तो इसमें मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत लंबा मेथड Sir, मत, छोड़ दो ये मेथड. ये मेथड, लंबा मेथड है. सॉरी, फिर इसमें आपको मेथड पहले, 1 समझा मुझे. हाँ पहले आपको मेथड 2 भी कैसा है देखो, देख लो फिर भी. चलो मैं बता रहा हूँ. तो ये अटक गया मेरे को, एक सेकंड इसका. मेथड 2 भी देख लो. PRD एंगल PRD प्लस एंगल PRQ कितना होता है बेटा? PRD PRQ. सर 180. 180 डिग्री. क्यों? लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. हाँ, तो PRD तो मेरे को 127 दे दिया है, प्लस PRQ नहीं मालूम है. हाँ, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 127. दैट विल गिव यू 3. 7 में से 2 गया 5 और 1 तो 53. तो एंगल PRQ तुमको कितना मिला? 53. हाँ, अभी देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल PRQ प्लस एंगल APR इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स है ना. PRQ तो मेरे को मिल गया, दैट इज 53. क्या मैं इसको ऐसा, APR को ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल APQ प्लस एंगल APR, नहीं QPR. APR को APQ और QPR में लिख सकता हूँ, है ना. 180 ही होगा. हाँ हाँ, तो ये अभी 53 APQ का वैल्यू मुझे मालूम है 50. हाँ, QPR का वैल्यू मुझे Y दिया गया है इज इक्वल टू 180. ये हो जाएगा Y प्लस 103 इज इक्वल टू 180. तो Y is equal to 180 minus 103 which will give you 7777 again. तो Y का वैल्यू इधर भी 7 आया, इधर भी 7 आया. तुमको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर कॉल. सर आई थिंक मुझे फर्स्ट वाला ही समझा. हाँ, फर्स्ट वाला समझा, फर्स्ट वाला करो. नो हरीज, फोटो निकाल लो. एक काम करो, सेकंड वाला डिलीट ही कर देता हूँ, तुमको कंफ्यूजन ही नहीं करना. बोलेगी सर ऑलरेडी इतना कंफ्यूजन है माइंड में ही, और एक दे दिए.
ओके एक मिनट डन। डन ना, हम्म। विल स्टॉप आज के लिए इतना ही। ओके एक ही सम बचा मेरे ख्याल से, फिर विल वाइंड इट अप दैट दूसरा टुमारो। एक्सरसाइज। Okay, I would request you beta solve all the 5 sums again at home. यस Okay, यस and send me the PDF. Chalo. या Bye bye. Take care. Enjoy.